हमारा लास्ट पार्ट रह गया था जो सेल से चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज सेल डिवीजन and cell cycle. So today we are going to do that. Okay, so the things which we are going to study related to the your course curriculum, okay, have the objectives that once you have studied this part, you will be able to know what is cell division, what is cell cycle. You will be able to know about the purpose of cell division and what is the difference in prokaryotic and eukaryotic cell division. Okay, and you will also be able to describe about the cell cycle. Okay, so the cell division is the process of dividing a cell into two new cells. एक छोटे से सेल को उसी के जैसे दो नए सेल्स में डिवाइड करना is called cell division. Okay, three types of cell divisions are there, or cell reproduction in organisms is there. For prokaryotic or in the bacteria, the cell division which takes place is called binary fission. Okay, that is divide into two new identical cells. A single cell will get divided into two new cells which will be identical to the one from which they have been evaluated. Okay, eukaryotic. Now the eukaryotic cells or the multicellular, you can say the human cells or animal cell, they are divided, or their reproduction cycle or their reproduction division is in two ways, mitosis and meiosis. So mitosis says the cell or organism's growth and then a replacement and repair of damaged cell. Whereas meiosis says the formation of sex cells or gametes. Okay, so the question is, why do cell divide? Okay, cells को divide करने की जरूरत क्या है? Cell divides for the growth, development, repair of the worn out tissues and reproduction. सेल्स इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ग्रोथ चाहिए बॉडी को, या पार्ट्स को, या डेवलपमेंट चाहिए, या जो टिश्यूज टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उतर चुके हैं अपनी जगह से, उनको दोबारा से बनाने के लिए, या फिर नई ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल को डिवाइड होना जरूरी है. सेकेंड इज ताकि मटेरियल्स का एक्सचेंज किया जा सके इधर से उधर, एंड टू कंट्रोल द डीएनए ओवरलोडिंग. Okay, so when we talk about prokaryotic cell division, binary fission, तीन मेजर स्टेप्स आते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बन जाती है, या फिर आप कह सकते हो फोटोकॉपी बन जाती है क्रोमोसोम्स की. ओके, देन इज क्रोमोसोम सेग्रीगेशन. क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. सेल के दो डिफरेंट पोल्स की तरफ, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, एंड देन साइटोकाइनेसिस, जिसको सेपरेशन कहा जाता है, कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेंटर में से दो सेल्स को बना देता है डिवाइड होने के बाद. सेंटर में से डिवाइड होगा और आइडेंटिकल दो सेल्स को बना देगा. हर एक नया डॉटर सेल जो होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उसके पेरेंट सेल से. ओके, क्लियर अप टू दिस पॉइंट?
Yes, sir. Okay, so this is the division of prokaryotic cell. So you can see the mother cell is there, okay, having the chromosome, okay. Then the cell started to elongate, its DNA started to replicate. Now the DNA molecule starts to move towards the poles. This helps in the elongation of the more elongation of the cell, but from the center it will start to get separation. Then cross membranes are being formed completely with two identical cells still joined, but after this stage two new daughter cells will be formed which will be identical in the form to their mother cell. Okay, now come the eukaryotic cell. So the cell division in which the two daughter cells each having same number and kind of chromosomes as the parent cell. ऐसी डिवीजन सेल की जिसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं, दोनों का नंबर सेम होता है, किनका? क्रोमोसोम्स का और क्रोमोसोम्स की काइंड का भी, जैसे कि उनके पेरेंट सेल। ठीक है, माइटोसिस दो मेन स्टेप होते हैं। माइटोसिस दो मेन स्टेप होते हैं, एक खुद माइटोसिस और एक साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनोफेज, देन टेलोफेज। ओके, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या करता है, दो नए डॉटर सेल्स जो हैं उनको डिवाइड करता है, उनको बनाने के लिए। ईच डॉटर सेल जो बनता है दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ओके, लाइक दिस। ये रहा मदर सेल, इसमें आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आगे बढ़ा, इसकी रेप्लिकेशन हुई। ठीक है, और आगे बढ़ा, इसमें क्या हुआ, डीएनए जो क्रोमोसोम है रेप्लिकेशन के बाद ये सेपरेट होने स्टार्ट हुए। ठीक है, मेम्ब्रेन्स बननी स्टार्ट हुई और साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, दो डॉटर सेल्स बन गए जिसमें क्रोमोसोम सेम उसी तरीके से अवेलेबल है जैसे कि मदर सेल। ओके, क्लियर? Yes, sir. Okay, now comes the eukaryotic cell division, okay, that is meiosis. meiosis में भी दो मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला वैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस, मगर इसमें जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट सेल्स। ओके, so the cell cycle is the sequence of events from the time a cell first arises as a result of cell division until the time when that cell itself divides. सेल साइकिल का मतलब है वो सीक्वेंस जब सेल खुद बना सेल डिवीजन की वजह से, एंड टिल जब उसको खुद को डिवाइड होना है। ओके, सो इसमें क्या क्या आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन हो जाती है तब फिर से दोबारा क्या नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें दो मेन पीरियड्स आते हैं, इंटरफेस पीरियड एंड माइटोटिक फेस पीरियड। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस, जिसमें क्या आता है सेल ग्रोथ के टाइम पे G1 फेस,
डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एस फेस एंड माइटोसिस की प्रिपरेशन के टाइम पे G2 फेस, और जब माइटोसिस फेस चलता है जिसको हम माइटोटिक फेस कह देते हैं या सेल डिवीजन कह देते हैं, तब होती है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। एक बार साइटोकाइनेसिस हो गई, नया सेल बन गया, अब वो सेल फिर से दोबारा किस में जाएगा, सेल साइकिल में जाएगा। So the first is interphase. Okay, interphase is the period of growth, DNA replication between the cell division. एक ऐसा फेस जिसको हम ग्रोथ का फेस कहते हैं, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है सेल डिवीजन के दौरान। ओके, तीन मेन फेसेस होते हैं, जी फेस, G1 फेस जिसमें सेल का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, एस फेस जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, दो सिस्टर स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के जिनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। ओके, एंड G2 फेस, ऑर्गेनेलिज जो है वो डबल हो जाती हैं, एक नई साइटोप्लाज्म की फॉर्म बन जाती है, और बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है माइटोसिस के लिए वो भी बन जाते हैं। ओके, क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम जो होता है वो इस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, पी फॉर्म, जब पी आर्म जो है जिसको हम शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर कहते हैं, सेंटर का पार्ट जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं जो कि कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट होता है जहां पे दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ते हैं, क्यू आर्म जिसको हम लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर कह देते हैं, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसमें के डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और इनको अंदर रखने का काम कौन करता है, एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन। ओके, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो सेल साइकिल। सो सेल साइकिल जो है हम पहले पढ़ेंगे माइटोटिक फेज के बारे में। सो द माइटोटिक फेज और द माइटोसिस, ओके, जिसमें के सेल की डिवीजन होती है। ओके, माइटोसिस जो है the division of a single nucleus into two genetical identical एक सिंगल न्यूक्लियस सेल्स में दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स में डिवाइड हो। माधवी बेटा आपका माइक ऑन है। इस डिवीजन में मेनली दो प्रोसेसेस होते हैं, एक न्यूक्लियस की डिवीजन होना, दूसरा साइटोप्लाज्म की सेपरेशन होना, ताकि जो दो नए न्यूक्लियस बने हैं उनको दो डॉटर सेल्स में डिफरेंटली अरेंज करना। ओके, माइटोटिक फेज में होता क्या क्या है कि सबसे पहले तो चीज जो है वो है कि ये दो माइटोटिक फेज में डिवाइडेड होता है। पहला माइटोटिक फेज है, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड जो सेकंड माइटोटिक फेज है उसमें आती है साइटोकाइनेसिस। तो पीमैट एक इजी वे है याद रखने का, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, सो इंटरफेस में सबसे पहले तो आपको इंटरफेस समझना पड़ेगा कि इंटरफेस के दौरान सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा आपको।
न्यूक्लियोलस है जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर इसके छोटे छोटे क्रोमेटिड्स हैं और बाहर एक सेंट्रियोल है साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहले आती है अर्ली प्रोफेज। जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और एक स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। ओके, लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स थे वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में बन के न्यूक्लियर एरिया को कवर अप कर लेते हैं। सेंट्रियोल्स ज्यादा चले जाते हैं पोल्स की तरफ और जो स्पिंडल है वो कंप्लीटली बन जाता है सेल के अंदर। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, सो देन कम्स द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर अलाइंड विद द मेटाफेज प्लेट। ओके, जो सेंट्रियोल्स मूव किए थे पोलर एंड्स की तरफ, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो हर एक क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेंट्रियोल्स हैं दो साइड्स पे, इनके स्पिंडल्स पहले पिछली स्टेज में प्रॉपर नहीं थे, मगर इस स्टेज में स्पिंडल्स आपस में जुड़ चुके हैं और इस हर एक स्पिंडल के साथ क्या जुड़ चुका है, क्रोमोसोम जुड़ चुका है। ठीक है, या कह सकते हो कि क्रोमोसोम प्रॉपरली अलाइंड हो चुका। ओके, देन कम्स द एनाफेज। सो द एनाफेज इज कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, दे गेट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये जो सेपरेटेड क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो पिछली स्टेज में यहाँ पे जुड़े हुए थे क्रोमोसोम्स और स्पिंडल्स, इस स्टेज में क्या है, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर जाने स्टार्ट हो ऑपोजिट पोल्स की तरफ, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो सेल की शेप में भी चेंज आ गया है, जिसको हम क्या कह देते हैं, पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Okay, then comes the last stage, that is telophase. So telophase में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, क्रोमैटिन को अनकॉइल कर देंगे, न्यूक्लियर एनवेलप्स दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा और जिसमें के स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, एंड फाइनली द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, वो स्टेज है जो माइटोसिस की स्टेज के एंड होने के बाद शुरू होती है, जिसमें क्या आएगा, एनिमल सेल में एक क्लीवेज जो बननी स्टार्ट हुई थी वो डॉटर सेल्स को सेपरेट कर देगी, जबकि प्लांट सेल में ये क्या करेगा, सेल की प्लेट को सेपरेट करेगा ताकि डॉटर सेल्स बन सके। ओके, जब एक डॉटर सेल बन गया, जब दो डॉटर सेल बन गए जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ये दोबारा से फिर कहां पे पहुंच जाएगी स्टेज, इंटरफेज की स्टेज। ठीक है, Yes, समझ sir. आ गया सारा? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. I think this is sufficient for you people.